नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां लुटेरों की उस वक्त शामत आ गई जब वो एक लूट की कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन जब भागने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें दबोच लिया। लोगों ने 3 लुटेरों को जमकर पीटा। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश के लिए आए थे, की गई थी। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को गोली भी मारी। आसपास के दुकानदारों ने लुटेरों को पकड़ा, लुटेरों की जमकर धुनाई की। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे जब ये लुटेरे लोगों के हत्थे चढ़े तो जमकर धुनाई की गई। पुलिस ने भी इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया। दुगरी रोड की यह वारदात है, लेकिन बताया गया है कि इनके 2 साथी वहां से फरार हो गए। बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लुधियाना में 2 लुटेरों की शामत आ गई। 3 लुटेरों की, लोगों ने तीनों को जमकर पीटा। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की थी लुटेरों ने और 2 कर्मचारियों को गोली भी मारी। आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने आरोपियों में से 3 को पकड़ा और फिर जमकर पीटा। पुलिस ने बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दुगरी रोड की वारदात है और जानकारी ये कि इनके 2 साथी आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਦਾ EMPLOYE ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਫਾਇਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ 5 ਜਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਉਤਰੇ, 2 ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। मुथूट फाइनेंस में तकरीबन 9 बजे के आसपास एक अटेम्प्ट टू रॉबरी हुई थी। इसमें टोटल इन्होंने 5-6 बंदे आए हैं, उन्होंने फायरिंग भी करी है। 3-4 बंदों की फायरिंग करी है। उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। 3 बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी सारे इनमें सारे राउंड अप कर लेंगे। सर 3 व्यक्ति कैसे राउंड अप हुए, थोड़ा बता दें कैसे? वो हमारी पुलिस की प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से हुए। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई, मिलता ही, तो इसलिए वो तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। कैसे आए थे, मतलब कि कितने टोटल? वो पूरा हम आपको पूरा वेरीफाई करके इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। तो सर वेपन तो सभी के पास, वेपन थे, हथियार थे सभी के पास? वेपन अभी तो 3 हमने पकड़े, वेपन है जो हमने रिकवर कर लिया वेपन। ਮੁਥੂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਡੁਗਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਇਸ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ATM ਹੈਗਾ ਵਾ, ATM ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੋਕ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ वाकये की जांच कर रही है। और अब बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जहां सियासी अखाड़ा सज चुका है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और इनेलो ने भी पत्ते खोले, लेकिन सवाल है कि बड़ौदा में कौन मारेगा बाजी।
बड़ौदा का बाजीगर कौन? आखिरी वक्त तक कांग्रेस और इनेलो ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आज नामांकन का आखिरी दिन भी था। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर भरोसा दिखाया, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा, जबकि इनेलो ने बड़ौदा से जोगेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि इनेलो के उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन बड़ौदा कांग्रेस की सीट है या फिर इनेलो का कब्जा रहा? सवाल है कि क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या बड़ौदा में इस बार कमल खिलेगा या फिर इनेलो कोई कमाल करेगी? सियासत के अखाड़े में किस्मत आजमाने के लिए योगेश्वर दत्त बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन के वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले योगेश्वर दत्त ने रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जीत का दावा किया। योगेश्वर दत्त ने कहा कि वो बड़ौदा के विकास के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस और इनेलो दोनों में से कोई रेस में नहीं है। बड़ौदा का चौमुखी विकास करवाना उनका लक्ष्य है। बार हम 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी थी, अपने प्रधानमंत्री देने के लोग डालेंगे। आज अभी अपने फार्म पर हमारे साथ में हमारे MP साहब भी हैं, कृष्ण पवार साहब भी हैं, नेता भी हैं, नीति दलाल जी भी आए हुए थे, कोशिश भी MP हैं जो हमारे गए हुए थे। बस ये है कि आप देखो कि इस बार बहुत ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी आएगी और यहाँ इस बार कमल खिलेगा, वो भी नजर आएगी। इधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आखिरी वक्त तक कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान चलता रहा, लेकिन इंदुराज नरवाल टिकट लेने में कामयाब रहे। बड़ौदा हलके की सीट कांग्रेस विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट पर कृष्ण हुड्डा के बेटे जितेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा को भी टिकट देने के में सैलजा को कोई गुरेज नहीं था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कपूर नरवाल को टिकट देने के पक्ष में थे। इंदुराज नरवाल के नामांकन में कुमारी सैलजा और किरण चौधरी भी पहुंचे। कितनी उम्मीद है इसकी? जीतेंगे। हाँ जी, जीतेंगे। जीत को लेकर पूरी उम्मीद है। हाँ। जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे भी सारे आए हुए विधायक आए हुए हैं, सब आएंगे। जो हल्के के विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार रही, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। पता लग जाएगा। तो अभी नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्या लगता है कि नहीं है, पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता है। वहीं इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर दांव खेला है। 2019 विधानसभा चुनाव में भी जोगेंद्र मलिक ही मैदान में उतरे थे। आखिरी दिन तक पार्टी में प्रत्याशी पर मंथन का दौर चलता रहा, लेकिन अचानक जोगेंद्र मलिक के नाम की घोषणा हुई। नामांकन के वक्त पार्टी नेता अभय चौटाला मौजूद रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है यहाँ से लगातार 77 से लेकर के 2005 तक हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा। पिछले 3 चुनाव में बड़े थोड़े कम मार्जिन से हमारा प्रत्याशी चुनाव हारता रहा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। हुड्डा का गढ़ होता तो फिर हुड्डा पहले क्यों नहीं चुनाव जीता? 2005 में तो हुड्डा की बहुत बड़ी लहर थी, तो बड़ा नारा दिया था चौधर का। उस वक्त में भी हमारा प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत करके गया था। अब भी जो है इस चुनाव में भी
अगली बड़ी खबर, अंबाला में किसान की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री नायब सैनी का बयान कि किसान की मौत के लिए चढ़ूनी जिम्मेदार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस से मिली भगत भी है। ट्रैक्टर रैली पर पथराव किया गया। निजी स्वार्थों के लिए लोकतंत्र को लठतंत्र बनाया। अंबाला में बीजेपी की रैली हुई थी और इसी रैली में किसान की जान गई थी। इस पूरे मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसी बीच नायब सैनी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है बीकेयू नेता किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कि वो किसान की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। पथराव किया गया, लोकतंत्र को लठतंत्र में तब्दील कर दिया गया निजी स्वार्थों के चलते। इतना ही नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कांग्रेस की मिली भगत का भी आरोप लगाया गया। मैं इसको कहूंगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप और कांग्रेस के सीधे सीधे पदाधिकारी जिस प्रकार का नंगा नाच उन्होंने यात्रा को रोक करके किया, वो 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, सड़क को रोक करके लगातार 3 घंटे तक जिस प्रकार से जो इन कानूनों के समर्थन में किसान आ रहे थे, उनके ट्रैक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी की, डंडों से हमला किया और डंडों के बाद भी जो ट्रैक्टरों के ऊपर किसान बैठे थे, उन किसानों को भी धक्के दे करके नीचे गिरने का काम जो है वो बड़ी ओछी हरकतों में उतर आई है और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवाया है, कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि किसान से मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई, उसको खींच के नीचे डाला गया है। किसी ने उससे कोई हरकत नहीं की। उसको हार्ट अटैक हुआ है और उसको पहले भी हार्ट अटैक हो चुके हैं। जो हमें मालूम हुआ है कि उसको पहले 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं और बुजुर्ग व्यक्ति था, 75 साल का। ऐसे व्यक्तियों को आंदोलन में लेके भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये स्वार्थी लोग मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं। अपने कार्यकर्ता का मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं। मनोज, एक तरफ जहां बीजेपी सांसद नायब सैनी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि उनका इससे कोई सरोकार है ही नहीं। मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सुरेश, आवाज आ रही है? जी मनोज, आपसे जानना चाहते हैं, अंबाला में किसान की मौत पर जो बवाल शुरू हुआ था, अब रुकने की बजाय, थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। नायब सैनी ने सीधे सीधे बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते कि जानबूझकर उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुरेश, जिस प्रकार से घटना हुई है, बीजेपी का मानना है और जिस प्रकार से सांसद नायब सैनी ने आज कहा है कि वो एक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, तो लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने निर्मल सिंह का भी नाम लिया है कि उनके समर्थकों ने न केवल उनकी ट्रैक्टर रैली को रोका, बल्कि 3 घंटे तक सड़क पर तांडव किया, पत्थरबाजी की गई, धक्का मुक्की की गई और इसी वजह से घबराहट में जो किसान है भरत सिंह राणा, उनकी मौत हुई है और इसके लिए सीधे तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिम्मेवार हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन पर आरोप लगाया गया है बीजेपी सांसद की तरफ से, उन्होंने कहा कि जिस किसान की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनको पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। बाकायदा 3 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। 75 साल के आसपास उनकी उम्र थी। इसके बावजूद रैली में लाया गया और इस बार भी किसी पत्थर लगने की वजह से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान गई है। इस मामले पर जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही, जबकि बीजेपी नेता का, सांसद का
का ये आरोप कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं वो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थकों, निर्मल सिंह के समर्थकों ने इस ट्रैक्टर रैली के दौरान हुड़दंग मचाया, पत्थरबाजी की, डंडों से उनके समर्थकों पर, किसानों पर हमला किया। ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां बंगाल में सिख सुरक्षाकर्मी से मारपीट का मामला था, जो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बंगाल सरकार के खिलाफ सिख संगठनों की तरफ से रोष मार्च निकाला गया। अकाली दल की हरियाणा इकाई भी इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुई। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। सिख सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह की रिहाई की भी मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में सिख सुरक्षाकर्मी से मारपीट का मामला। कुरुक्षेत्र में बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सिख संगठनों की तरफ से रोष मार्च निकाला गया। अकाली दल की हरियाणा इकाई भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रही। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिख सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह की रिहाई की मांग उठाई गई। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो पूर्व सैनिक बलविंदर सिंह के साथ बेइंसाफी हुई है, उसके विरोध में हमने आज यहाँ रोष मार्च निकाला है। यहाँ की सारे जथेबंदियों के जो मुखी थे वो सारे यहाँ पहुँचे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने दे वास्ते असी 78% कुर्बानियाँ दित्तियां ने। जदों सरहद ते लोड़ पैंदी है तो साडी सिख रेजीमेंट सब तो अगे होके लड़ाई लड़ती है। तो सानू बड़े दुख नाल अज कहना पैंदा है कि सानू अपने आप इंसाफ दिवाउण दे लई, अपनी पगड़ी दे नाल इंसाफ करवाउण दे लई सड़कां ते उतरना पै रहा है। इस तो ज़्यादा शर्मनाक गल शायद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका प्रधान के ससुर ने आत्महत्या की है। फतेहाबाद के जाखल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यालय में पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जान दी। पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था। सुसाइड नोट में 6 से ज्यादा पार्षदों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। आरोप कुर्सी पर बने रहने के लिए पार्षदों पर पैसे मांगने का है। आरोपी पार्षद पहले भी ब्लैकमेल करते आ रहे थे, जिसके चलते ये बड़ा घातक कदम उठाया गया। बड़ी खबर फतेहाबाद के जाखल से, जहां कार्यालय में पंखे पर फंदा लगाकर पालिका प्रधान के ससुर ने आत्महत्या की है। पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था। सुसाइड नोट में 6 से ज्यादा पार्षदों पर पैसे मांगने का आरोप है। आरोप कुर्सी पर बने रहने के लिए पार्षदों पर ये पैसे मांगने का है और आरोपी पार्षद पहले भी बताया गया है कि ब्लैकमेल करते आ रहे थे, लेकिन इस बार नगरपालिका प्रधान के ससुर ने उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। नॉन कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव आया हुआ था सीमा रानी मेरी वाइफ के खिलाफ नगरपालिका प्रधान। तो कुछ एमसीओ ने पहले भी पैसे लेकर हमें वोट डाल लेते, ब्लैकमेलिंग कर मेरे पिताजी को पैसे ले लिए थे और अब भी उनसे ब्लैकमेलिंग कर बार बार पैसे मांग रहे थे। उन्होंने उनकी जब पुलिस प्रशासन ने तलाशी ली गई है तो उसके अंदर सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, कितने एमसी ने किसने लिए हैं, कितने क्या किया है, कौन एमसी है, कितने एमसी ने उनके मारने के लिए मजबूर किया है मरने के लिए। हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि इन एमसी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे पिताजी के कातिलों को अंदर होना चाहिए। सीमा जो गोयल हैं, जो नगर पालिका की प्रधान है, उनके ससुर हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। इन्होंने जो है नगर पालिका अध्यक्ष के जो कमरा है, ऑफिस है, उसमें सुसाइड की। हमने इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का अभियोग जो है वो अंकित कर रहे हैं जी, और आगामी कार्रवाई जारी है। मेरे सहयोगी फतेहाबाद से जसपाल सिंह इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े। जसपाल, काफी गंभीर मामला है। जिस तरीके से सुसाइड नोट में बताया गया कि कुछ पार्षद ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया। क्या इस मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार कर पाई है अभी तक?
बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के जाखल नगर पालिका का ये पूरा मामला है। आज जो नगर पालिका की प्रधान है सीमा गोयल, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, तो उसी के चलते जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो उससे पहले सीमा गोयल के ससुर ने जो है कार्यालय के अंदर ही जो है फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, और जान देने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें कुछ पार्षदों पर आरोप लगाया गया है कि पार्षद जो है बने रहने के लिए, कुर्सी बने रहने के लिए उनसे जो है पैसे का दबाव, पैसे मांगते थे, ब्लैकमेल करते थे। इसी के चलते, ब्लैकमेलिंग के चलते जो है उन्होंने आज जो है अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अभी गिरफ्तारी फिलहाल किसी की नहीं हुई है, और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी ही गिरफ्तार करके जो भी इसमें आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद जसपाल तमाम जानकारी के लिए। तो नगर पालिका प्रधान के ससुर की आत्महत्या का यह मामला, और बताया गया कि जाखल में जो अविश्वास प्रस्ताव आना था उससे पहले ये कदम उठाया गया। आरोप सुसाइड नोट के माध्यम से ये लगाया गया है कि कुछ पार्षद थे जो पैसे की मांग कर रहे थे, पहले भी पैसे मांगे गए और इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ये कदम उठाया गया। अगली बड़ी खबर, बल्लभगढ़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। एक घर पर पुलिस ने छापेमारी की और लंबे समय से इस जगह के बारे में शिकायतें मिल रही थी, और जब शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की तो बल्लभगढ़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 2 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। बल्लभगढ़ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नवल कॉलोनी में एक निजी मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसके चलते वहां पर रेड की गई। वहां से 4 लड़के, एक लड़की और एक महिला को गिरफ्तार किया गया और उन पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।